Good morning, students. Students, today we will start our chapter from this the authority of a constitution. Students, as earlier we have discussed about the functions of constitution, so here now we'll see that these there are some of the functions which a constitution performs, and these functions explain why most societies have a constitution. इन्हीं फंक्शन से ही पता लगा है हमें कि सभी कंट्रीज़ ने ज़्यादातर कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ऑप्ट किया, इंट्रोड्यूस किया. बट देर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस. एंड विच आर 3 फर्दर क्वेश्चंस? फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, second is how effective is a constitution, and third is a constitution just means justice. In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी ये चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट को कैसे बनाया जाए, मीन्स सरकार को कैसे बनाया जाए, और इसके लिए कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए. When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. But some countries, like the United Kingdom, do not have one single document that can be called the constitution. Rather, they have a series of documents. एक बुक नहीं है बल्कि बहुत सारे सीरीज़ हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, and decisions that taken collectively are referred to as the constitution. So we can say that constitution is the document or set of documents that seeks to perform the functions that we mentioned above. But many constitutions around the world exist only on papers. Yes, almost countries, they have the written document which is called constitution. They are mere words existing on a parchment. Parchment होता है एक कागज़ पे. The crucial question is how effective is a constitution. Now you must have got the definition of constitution, that it is a set of rules, set of documents according to which it is mentioned that state is how the state is to be constituted and what norms a state should follow. Now the second question is that how effective is the constitution, or what makes it effective? What ensures that it has a real impact on the lives of people? And making a constitution effective depends upon many factors. अब किसी भी constitution को effective बनने के लिए बहुत सारे factors हैं. सबसे पहले mode of promulgation. Now promulgation means how it is introduced, how it is evolved, how it is given to the people. So this refers to how a constitution comes into being. Who drafted the constitution and how much authority did they have? How many countries' constitution remains defunct because they are drafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. Now the most successful constitutions like India, South Africa and the United States are constitutions which are created in the aftermath of popular national movement. तो सबसे अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे मूवमेंट्स के बाद ही बने थे. Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, but it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. अगर हम वैसे बात करें तो 1946 से 1949 का ड्यूरेशन था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड तैयार हुआ था वो तो बहुत पहले से, जो हमारा इतिहास है जिसमें बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट that it was drawn up by people
who enjoyed immense public credibility. सबसे बड़ी बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की है कि इसका इतनी लेजिटिमेटी है इसकी, क्योंकि ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जिनके ऊपर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, इंडियन पीपल ने अपना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा विश्वास हासिल डाला था. Who had the capacity to negotiate and command the respect of the wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, but the final document reflected the broad national consensus at the time. Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution. कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके लिए सभी लोगों ने अपनी एक डिज़ायर के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वोट किया था. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्ट टू सच अ रेफरेंडम बट नेवरदलेस कैरीड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. Although the constitution itself was not subjected to a referendum, हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक नोटिस के रूप में नहीं है. The people adopted it as their own by abiding by its provisions. लेकिन लोगों ने इसको कैसे अडॉप्ट किया है कि जैसे कि इसके लिखे हुए प्रोविज़न से वो बंधे हुए हैं. देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट्स इट्स प्रॉस्पेक्ट फॉर सक्सेसफुल. इसीलिए कि जो अथॉरिटी ऑफ पीपल है जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उसने पूरी हेल्प की कि इसके सभी अपने पार्ट पर एक सक्सेस के रूप में लाने में. द सब्सटेंसिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविज़न था? इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविज़न. यही एक हॉलमार्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस होने का. एक यही कारण है क्योंकि इसने समाज के हर व्यक्ति को कोई ना कोई कारण दिया है कि वो इसके प्रोविज़न्स के साथ चले. अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए let us discuss it later on. A constitution that, for instance, allowed permanent majority to oppress minority group within society would give minority no reason to go along with the provision of constitution. और इसका for instance means for example कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसने मेजॉरिटी को अलाउ किया था कि वो ऑप्रेस करे माइनॉरिटी ग्रुप को, उसी को ही सोसाइटी में उसी को ही माइनॉरिटी को भी ये पूरा अलाउ किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स के साथ चलें. और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स और एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. या फिर ऐसा प्रोविज़न, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कुछ मेंबर्स को प्रिविलेज नहीं देगा और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंस्ड द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी. और इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल ग्रुप्स के लोग हैं उनको भी पावर देगा. वुड ईज टू कमांड एलिगेंस, और उनको पूरा सीज करेगा. अगर किसी ने कमांड रखी है दूसरे के ऊपर, अगर मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी के ऊपर कोई कमांड रखता है तो उसको सीज करेगा. इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज़ बीइंग स्टिफल्ड, अगर कोई ग्रुप सोचता है कि उसकी पहचान को रोका जा रहा है, दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इस संविधान से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, और इसीलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही न्याय, अपना जस्टिस नहीं दे पाएगा. बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस, और इसीलिए इसको लोगों को कन्विंस कराना पड़ेगा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि लोगों को न्याय दिलवाएंगे. डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in society? इसी एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर सोच के देखें और कुछ क्वेश्चंस पूछें और ये पूछें कि what would be content, कि कुछ जो हमारी सोसाइटी में जो बेसिक रूल्स हैं उनका क्या कंटेंट होना चाहिए, such that
दे गेव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलोंग विद देम, और जिससे कि तभी वो हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक रीज़न दें कि वो इसके साथ साथ चले। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू सक्सीड। जैसे कि अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लोगों को ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा इक्वलिटी देगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में सक्सेसफुल होगा। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन? तो इसीलिए क्वेश्चन है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर मैं ब्रॉडली मतलब इस क्वेश्चन ये रेज़ करूं, तो क्या सभी लोगों को इस तरह का पावर दी है, इस तरह का रीज़न दिया है कि वो उसके साथ साथ चलें? आफ्टर स्टडिंग दिस बुक, जब हम इस किताब को पढ़ लेंगे, वन शुड बी एबल, तो हर व्यक्ति एबल हो जाएगा टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव, एक सही रूप से इसका आंसर देने में कामयाब हो जाएगा। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन? कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. Well-crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. Constitutions आम तौर पर ऐसे होते हैं जो कि लोगों में नहीं को शामिल नहीं करते, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया गया हो तो वो पूरी पावर को फ्रेगमेंट करता है, सभी लोगों में टुकड़ों में बांटता है सबको, और जिससे कि कोई सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपना कब्जा ना जमा सके। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिज़ाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एंश्योर, और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो इससे एंश्योर होगा दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, तो उससे यही होगा कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन पावर अपने हाथ में नहीं रखेगा। दिस इज़ ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था हॉरिजॉन्टली पावर शेयरिंग, ऑल द 3 organs हैव बीन गिवन, सो दिस इज़ हियर that horizontally fragments power across different institutions like the legislature, executive and judiciary, and even independent statutory bodies like the election commission. This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, अगर constitution पर अपना अधिकार जमाना चाहे, others can check its transgeneration, तो दूसरा आदमी इसकी इस काम को चेक कर सके, दूसरा इंस्टीट्यूशन। An intelligent system of checks and balance has facilitated the success of Indian Constitution. Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt means change करना, टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली नॉर्म्स और प्रोसीजर्स फॉलो करके बनाया गया है। दूसरा, इसमें एक ऐसा टाइम के हिसाब से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि अगर कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना हो, सर्कमस्टांसेस के नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो किया जा सके। दैट्स वाई टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। तो इसलिए जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, कठोर भी है, बट फ्लेक्सिबल भी है। एक तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और दूसरी तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, विल गिव नो सिक्योरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी, जिससे प्रिडिक्शन होता है, और आइडेंटिटी टू अ पीपल। Successful constitutions strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. जो भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सबसे पहले बिल्कुल सही बैलेंस रखेगा सबकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने में, और साथ साथ चेंज करने में भी, अगर नए सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसको चेंज करना पड़े तो वो भी रखेगा। यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसीलिए
आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उन्होंने एक इसको लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया है। इसका मतलब है कि जब भी मन करेगा, जब भी सर्कमस्टांसेस ऐसी आएगी तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limit on such changes। जैसे कि बैलेंस बना रखा है कि जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर पॉसिबिलिटी है चेंज करने की, और जहाँ पर उनके ऊपर लिमिट लगाना है चेंज पे वहाँ लगा भी सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर किया है कि वो तब तक सर्वाइव करेगा एक डॉक्यूमेंट के रूप में जब तक लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। So this arrangement also ensure that no section or group can on its own subvert the constitution, कि कोई भी सेक्शन, कोई भी ग्रुप अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकता। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. Were the people who enacted the constitution credible? क्या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो बहुत क्रेडिबल थे? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पावर वॉज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड so that it was not easy for any group to subvert the constitution? And most importantly, does the constitution give everyone some reason to go along with it? And most of this book is about this question. So today we have completed up to here, and tomorrow we'll go through how was the Indian Constitution made. So this is all for the day. Thank you.